Hello guys, this is Jayveer Singh and we are joined by very talented Devina for an exclusive conversation on Who's That 360 NDTV. Hi Devina. Hi. Thanks for doing this. We were looking for from so long for this interview. So my first question is, we have seen you in the acting sphere. The hit career, it is hit, it will be hit. But what is that transition happened from acting to content creation? I think it happened very organically. I never thought of content creation as such, but yes, now full time into it, and I want to tell people that yes, I mean, जो लोग सोचते हैं that what is she doing now? I mean, how is she earning money? So people in India needs to know that content creation is a full time job, and I am doing that right now. And the switchover happened. Very organically, out of passion, I will say. So it starts in 2018 or something when उससे पहले से ही I used to love to travel. I used to love to take videos. I'm a huge foodie, love to eat, take videos of that. I used to love doing makeup and kind of a makeup stalker you can say. तो सब कुछ का मैं वीडियो बनाती थी and all. But one day I realized my whole hard disk crashed. एंड आई रियलाइज मतलब इन सबको मैं कहाँ पे ऐसी जगह पे रख सकती हूँ जो आज को अगर मेरा हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाए तो मुझे पता है कि यहाँ पे होगा. सो इंटरनेट इज द स्पेस आई फेल्ट कि वहाँ पे मैं रख सकती हूँ. दैट वेज आई कैन एक्सचेंज दैट विद पीपल एंड वो रहेगा. मतलब मैं एक बार टाइप करूंगी तो मेरे 5 साल पुराना चीज भी मुझे वहां से मिल जाता था. तो जो ऑन द इंटरनेट था वो तो था, जो मेरे हार्ड डिस्क में था सब गया. सो गुरमीत, माय हस्बैंड, ही सेड ऐसे मत करो, लेट्स लॉन्च इट. यू डू योर यूट्यूब चैनल बट लेट्स लॉन्च इट प्रॉपर्ली सो दैट पीपल नो दैट यू आर डूइंग इट. और तुम भी तब सीरियसली करोगी, ऐसा नहीं कि एक दिन करके फिर छोड़ दो. तो ही नोज दैट आई एम वेरी कमिटेड. और अगर मैंने लोगों को कमिट कर दिया कि आई विल मेक कॉन्टेंट एंड रेगुलरली, तो मैं रेगुलरिटी मेंटेन करूँगी. तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा आई थिंक इन 2018 और हमने अब मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया. और इनिशियली मैं मतलब थोड़ा जो भी करती थी, मेकअप करती थी एंड ट्रैवल करती थी, तो उस तरीके से मैं डालने लगी. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक विद इन 6 months or 7 months, I don't realize, but I got my first brand, who wanted to collaborate with me. And I was like, wow, this is also something that exists. I had no idea. ऐसा नहीं कि मैंने लोगों का देखा था ऐसा होता है तो मैं आई और मेरे पास आया. and that's what I said happened organically. They loved my content and and बोलते हैं ना, एक बार शुरुआत बस होनी चाहिए. and then there was no looking back. So then more brands started coming in and I realized this is also a job apart from acting, जहाँ पे मैं real life में जो कर रही हूँ वो brands would want to get associated with. And that's how the whole content creation of me happened. Everybody is creating content. You just go on Instagram, you'll see Instagram is full of creators. So do you feel pressured? नहीं, मुझे प्रेशर नहीं लगता है. जैसे कि एक्टिंग इज अ वेरी प्रेशर्ड प्रोफेशन, जैसे बोलते हैं कि आपको हमेशा आपको बने रहना है. और ये सारी चीज़ तो बचपन से करते आए हैं, हमेशा बने रहना. और I mean, if you are not acting, you are learning something, you are working out, you are doing something or the other, to sustain till your next project and make yourself in a different way, evolve for your next project. तो उससे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन तो मुझे लगता है और कुछ नहीं हो सकता. सो कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग इज जब जो भी मैं कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट दैट. For me, it's that. And if you try to be real, आपको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है. If you try to be somebody, like somebody, तब लगता है मतलब then there is a void in the brain कि अब क्या करूँ, क्या करना है, सब कर रहे हैं, मुझे कुछ करना है. तो वो कुछ करने के लिए अगर जहाँ पे you think a lot, तब बहुत प्रेशर आता है.
just be organic, and because you have kind of understood what is that people want to see, and just be natural, so it does not feel a lot of pressure. ठीक है, you said that you don't feel pressured, but what does it take to stay relevant कि ठीक है वो views भी आने चाहिए, because you have started now, it's a business for you. For example, you are earning, you are getting brands को भी commitments होते हैं, this number will be giving you. So what does it take to stay relevant in this race? जैसे मैंने कहा कि evolve with time, और आपको एक मतलब you as a person is also evolving. आप एक साल पहले जो थे आप कंटिन्यूअसली वही चीज देते रहोगे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, तो वो हो गया. इंटरनेट इज समथिंग विच इज लाइक लाइक द व्हेल इन द सी, कि आप जो भी डालोगे खा लेगा और फिर मुंह हाँ करके फिर मांगेगा खाना दो. तो यू हैव टू इवॉल्व, और आप इवॉल्व होते रहोगे तो आपके जो कंटेंट है वो भी नया नया होते रहेगा. आपको ये नहीं देखना, एंड यू नेवर नो व्हाट वर्क्स. सो यू कैन नॉट गो बाय अच्छा मैंने ये एक वीडियो किया था इसमें इतना मुझे लाइक मिले थे, या मेरा वीडियो ट्रेंडिंग हो गया था, मैं सिमिलर और एक वीडियो सेम टू सेम पैटर्न में बनाऊं तो वो भी ट्रेंडिंग में जाएगा. मेरे लिए तो ऐसा कभी वर्क नहीं किया. आई हैव ऑलवेज इवॉल्व्ड विद टाइम, with every day, with every month. I have evolved as a person, my journey from an actor to what happened in the lockdown, then my baby, then another baby, and I've tried keeping it real, and I've evolved. My content has also evolved with time. So what is true to me, I have always displayed that. I have never seen ki chalo my first video which hit like in millions matlab is a video about skin brightening. तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे उसी पैटर्न में वीडियो बनाऊं. I have evolved with time. I did a video wherein I spoke about my pregnancy or my IVF journey. It made my video trending. तो मैं बारी बार वो नहीं कर सकती. So what I believe is evolving is the thing. You mentioned your IVF journey. You were trending, everybody Debina, news articles. Do you feel कि it was like एक filter हम draw करते हैं, where you draw that filter because audience wants to know everything about Debina, Gurmeet, your kids, they just obsessed. एक time के बाद when they saw your journey, like personal life, your blogs, they are just obsessed. Where you draw that filter that I'll not show this part. That also comes very organically. जैसे कि जो जब मेरे साथ होता है something that is very stressful to me, मतलब ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा पता नहीं, तो मुझे मतलब नेचुरली मुझे वो लगता है कि मैं ये सही वक्त नहीं है, मैं नहीं शेयर करूँगी. जब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन एबल टू कॉन्कर समथिंग, अ फियर और मे बी समथिंग जो मुझे एकदम लग रहा था लाइक अ रोड ब्लॉक, हाँ कभी हो ही नहीं सकता, तो वो जब मैंने खुद ओवरकम किया, आई फेल्ट यू नीड टू टॉक अबाउट, एंड मैंने वो सेक्शन को पकड़ के आई हैव स्पोकन, बिकॉज मी एज अ वुमन, कंटेंट क्रिएशन तो अलग बात है, लेकिन एज अ वुमन आई एम ऑल्सो ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स ऑन द इंटरनेट. मुझे जो जवाब इंटरनेट में आसानी से नहीं मिल रहा था, कोई इंडियन लोगों से, मुझे विदेशी लोगों के वीडियोस देखने को मिल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था वो इतने ओपनली बात कर सकते, तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं बात करते, तो यहाँ पे कहाँ से उन लोगों ने किया. मैं भी ऐसे जवाब ढूंढ रही थी, तो मुझे जो जवाब नहीं मिले, आई डिड नॉट वांट लाइक there's so many people who are looking for answers. So मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे जैसे सेम सिचुएशन में जाए और अंधाधुन अमेरिका का कोई एक वीडियो और कोई डॉक्टर और उन लोगों के बारे में सुने. पता करके भी ऐसा लगता है या मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे थोड़े से आश्वासन मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है हमारे देश का नहीं है. सो आई वॉन्टेड टू शो दैट पार्ट, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ कि कल को मुझे पता नहीं जवाब हाँ ना, मैं उधर को थोड़ा सा अपने पास रखती हूँ. जैसे हम लोग कहीं घूमने गए, जैसे हम कल ही घूमने गए, आई एम शोइंग ऑल द गुड थिंग्स ऑफ इट. देयर आर थिंग्स, देयर आर मेल्टडाउन्स, देयर टेम्पर टैंट्रम्स, देन बच्ची एकदम गुस्से के मारे लेट गई जमीन पे,
वो सारी चीज़ों को मैं उतना नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मुझे लगता है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों को ऐसा मतलब जानना हो, जब लोग अपना फ्रस्ट्रेशन जताते हैं, आई हैव माई टॉडलर्स और बहुत अनरूली बिहेव करते हैं, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, तब शायद मैं मेरा वो एक स्निपेट दिखाऊंगी कि इट इज that happens with everybody and you are not alone. So मैं उस टाइम पे दिखाती हूँ. Unnecessarily showing everything is not required. You are embracing motherhood, ठीक है. The thing working mother के साथ होता है, they are often in guilt trip कि we are not able to make it with our kids, ठीक है ना, या फिर वो काम छोड़ देते हैं. So how do you balance that? I feel guilt trip, mom guilt is something very real and कोई अगर बोले कि उसको mom guilt नहीं होता है तो वो माँ झूठ बोल रही है. तो सच ये हर एक माँ, जो माँ साथ में है ना 24 घंटे, उनको भी होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि मॉम इज समथिंग जिससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. एक माँ काम पे जाए तो बोलते हैं घर पे टाइम नहीं देते, एक माँ घर पे बैठ जाए तो लोग पूछते हैं करती क्या हो, ऐसे. तो जिधर भी जाए लोगों का सवाल तो होता ही है. प्लस जो घर पे बैठे हुए माँ को भी गिल्ट ट्रिप होता है कि मैं शायद ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ. एंड आई ऑल्सो गो थ्रू दैट. और मैं सच बोल रही हूँ, मतलब देर आर पीपल इन माई लाइफ who I fall back on, who I discuss, ऐसा मैं कर रही हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्या करूँ. आई थिंक डिस्कशन करके आप अपने नज़दीक के लोगों से वो आपको बता देंगे कहीं कि इट्स फाइन. हाँ, सबको होता है. देयर ऑल्सो यू आर नॉट अलोन. और आप जो कर रहे हो, मे बी यू कैन गिव लिटिल मोर टाइम, गिव लिटिल लेस टाइम. सोसाइटी इज वेरी क्रूड. आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो बोलते बाप रे हमेशा बच्चे करते हैं. आप थोड़ा कम टाइम स्पेंड करो तो उसको बच्चों की परवाह ही नहीं है. तो हर जगह आपको जवाबदारी करते करते ना, एट द एंड ऑफ द डे यू विल नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड योर किड्स. आप अपना बेस्ट देने के बाद भी यू विल फील गिल्टी. जस्ट थोड़ा सा मतलब यू हैव टू गो थ्रू इट. आई फील इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ मॉम. Okay, we talked about society being judgmental. The online scrutiny is very common. Whatever you do, good or bad, people will have something to say. We call them trolls. So if something is unpleasant under your comment, how you deal with that? Obviously sometimes I इग्नोर तो नहीं बोलूँगी, पर सच बात तो ये है कि जब अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, हाथ डालते हैं लोग, अच्छी बात बोलते, कहीं ना कहीं आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो. और कहीं जहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, आपकी आंखें वहाँ पे अटक जाती है. एंड इट इज़ ट्रू टू ऑल ऑफ अस. तब आप एक्चुअली सोचने लग जाते हो कि क्यों ऐसे लिख रहे हैं. समटाइम्स आई थिंक बैक कि अच्छा मैंने ये किया, ऐसा हुआ था क्या, अच्छा ऐसा हुआ क्या. मतलब लोग बोल देते हैं बॉडी शेम कर देते. इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू वर्क ऑन इट, आई टेक इट in my stride and work on it. और अगर मुझे लगता है कि no, I know what has gone through behind, I don't give it much attention. मुझे बस समझ में आता है कि हाँ दिख क्या रहा है. You have to understand from there this thing. And also you can't please everybody. So लोग हेट देने के लिए भी कई बार ज़्यादा लोग आ जाते हैं than giving love. You imagine, I mean लोग जो उसको अच्छा लगा वो देख के चले गए. जिनको बुरा लगा ना, गुस्सा आया या उसको कुछ जलीकटी बोल रहे, वो बैठ के कमेंट कर रहे. सो इट्स लाइक दे आर गिविंग यू दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर टू anyways they are giving you importance and they are making you popular. So take it nicely. You mentioned you started simply ऐसे वीडियोस डालना शुरू कर दिए, then government took it forward. So अभी आप how do you look back उस जर्नी में, how do you look back at that journey? कैसे शुरू हुआ, how it's going, future plans? फ्यूचर प्लान देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कभी किया नहीं है. आई हैव नेवर डन प्लान. मैंने ऐसे पेपर में बैठ के आई हैव ऑलवेज प्लान्ड इट इन माई प्लान. आई हैव ऑलवेज सीन इट इन माई ब्रेन. आई मीन द एंड प्रोडक्ट. तो एंड इट हैज़ हैपेंड लाइक दैट. वो बाद में मैंने बुक पढ़ के मैंने देखा कि इट इज़ कॉल्ड throwing things to the universe, and the universe
kind of gives it to you. Coming to Mumbai was never planned, but it happened. Going into films was never planned, but it happened. And then when I was doing South films, I never wanted to get into television, but it happened. Content creation तो मुझे आइडिया ही नहीं था ये क्या होता है. ये तो आई थिंक लॉकडाउन में बहुत लोग आ गए एंड it became another profession. But when I started it in 2018, I had no idea कि content creation क्या चीज़ होती है. I was just doing it. I was doing it happily and it happened. So सब हो रहा है. So I feel that God is the best planner and वो बस plan कर रहे हैं मेरे लिए. I need to just put in my hard work in whatever I'm doing right now. You know, you talked about films, TV, South. I think the most love or the fan following you got from TV, because we have loved your characters, grey characters, or whatsoever you have done. So, are you expecting something different? That's why you are not seen on TV, or what is the reason? टीवी का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. यू नो मैं जब भी कुछ भी पता नहीं है बोलती हूँ वो हो जाता है. बट आई डोंट थिंक कि मैं मतलब वापस से टीवी अभी एनी टाइम सून मैं शुरू करूँगी. बिकॉज अगेन टीवी इज़ अ वेरी वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन. आपको 12 घंटे शूट पे देना होता है, जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, प्लस 1 घंटा रेडी होने का. सो इट इज़ लाइक 15 आवर्स तो हो ही जाता है. तो with my 2 babies, that too 2 small, mom guilt. शायद मैं इतना टीवी नहीं शुरू करूँगी. बट आई थिंक आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू टीवी. बहुत मतलब रामायण से शुरू करके टिल विश, उसके बाद भी अलादीन दिल मांगे मोर ना, योर फैंस. हाँ आई थिंक मतलब एक्टिंग तो शुरू करूँगी बट टीवी करूँगी कि नहीं मुझे इतना नहीं पता. बट ये बात बोलना गलत होगा कि टीवी ने मुझे बहुत पॉपुलर किया. टीवी ने मुझे रिकग्निशन दिया डेफिनेटली एंड आई हैव वर्कड अ लॉट हार्ड लाइक रियली बचपन से लेके अभी तक. आई थिंक आई स्टार्टेड टेलीविजन इन 2007-8 जहाँ पे वैनिटीज़ नहीं होते थे. हम लोग ऐसे चेयर में बैठे रहते थे. सो जब मैं 2019 में मैं टीवी कर रही थी एंड यू नो अगर यू नो वैनिटी नहीं है शूट नहीं करेंगे टाइप का जो कॉन्वर्सेशन सुन के मुझे स्ट्रेन लगता था कि यू नो वैनिटी के बिना भी शूट किए हैं. सो अभी सब कुछ बहुत केक वॉक लगता है. सो I don't think I will miss doing TV, but I definitely miss acting. I will get into it and definitely something that I've not done before, a path that I've not treaded before. Okay, so you and Gurmeet have great chemistry. Everybody loves it. So 3 qualities that you admire about him most. I know you have a lot to talk and lot to tell. Just go on. 3 qualities. Yeah. That he trusts me a lot, which is very important in your partner. कि आपके पार्टनर अगर आप पे ट्रस्ट ना करे और प्यार आई थिंक ट्रस्ट पे बहुत ज़्यादा बिल्ट है. तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई नो ही ट्रस्ट मी एंड देन आई थिंक हिज काम नेचर. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कभी कभी गलती हो भी जाए तो मुझे पता है कि मुझे ब्लास्ट नहीं करेगा. मैंने कहा था तुमको. तो वो चीज़ अक्सर यू नो लोगों को ये करते आपके पार्टनर से चीज़ें छुपाने में मजबूर कर देता है. सो आई थिंक आई कैन डिस्कस विथ हिम अबाउट एनीथिंग. मुझसे गलती भी हो जाती है तभी भी बोलती मैंने बोला तो मुझसे गलती हो गई बट अब एंड वी सिट एंड यू नो फाइंड आउट द सॉल्यूशन. And the third thing is that I don't know, there are lots of things. He's non-judgmental. So again, I can talk about anything. He's my best friend. So मैंने love को बोला नहीं क्योंकि मुझे लगता है love का definition is all of this. Love is not, you know, just. You know, one change you have observed in Gurmeet and yourself also after becoming parents. इमोशनल हो गया हम दोनों बहुत. मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम दूर में मतलब रास्ते में भी या जैसे गुरमीत अभी शूट कर रहे हैं मनाली में तो वहाँ पे 2 छोटे लड़कियाँ दिखे उनको रोना आ गया. तो मुझे भी मतलब मैं रोड पे देखी कि एक छोटे बेबी को लेके कोई बेगर है मुझे इतना रोना आ गया. मुझे मतलब मुझे उसमें मेरे बच्चे दिखते हैं. तो आई थिंक वी हैव बिकम
एक्सट्रीमली इमोशनल, मतलब रोना आ जाता है बात बात पे अभी. Okay, so one message you would like to give to all content creators budding जो इस profession में आना चाहते हैं, content create करना चाहते हैं and want to make it their profession. I think be real, because आप जब रियल रहेंगे ना, आपके कंटेंट में एक मुझे लगता है कि मज़ा आएगा. कभी कभी बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत प्रेजेंटेड चीज़ भी नहीं दिखता है. कोई एक, आज ही मैं देख रही थी, किसी ने एक बहुत ही नॉर्मल किचन था, ठक ठक करके रख के आटा गूंदा और रोटी बनाया प्लेन. मैं बाकायदा एंड तक बैठ के देखी, वो आटा गोंदा, आटा लिया, गोंदा 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 और ऐसे से एक 3 लेई बनाया, तो रोटी बना. आई एक्चुअली kept on seeing it till the end, और लास्ट में मैंने देखा कि मैंने देखा क्या, लिखा भी था a simple girl making roti. I'm like really? So being real is the key. आपको बहुत फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग किसी का देख के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. इंटरनेट इज़ अ क्रेजी स्पेस, यू नेवर नो क्या चल जाए. जस्ट बी रियल. और एक बंदा जो बादाम बेच रहा था कोलकाता में, काचा बादाम की भाजा बादाम, आमर काचे पाई बुबु भाजा काचा बादाम. तो वो तो इट्स जस्ट बीइंग रियल. उसको पैशन है गाना गा गा के उसको बादाम बेचने का, एंड इट जस्ट मेड इट. And lot of people got popular with kacha badam. Kacha badam. So let's have a quick rapid fire round. I'll give you some easy questions to answer. Oh. They'll not be tricky. Okay. Yeah, you can make them tricky. So if you could ask any creator one question, whom and what would you ask? क्या पूछूं मैं, किसको पूछूं? I would like to ask a question to Ranveer Allahabadia, how he started with his podcast, because मुझे ये स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी. सो मुझे उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने हैं कि कैसे, मतलब हाउ ही डाइवर्स हिज क्वेश्चन, हाउ ही गेट स्टार्टेड, और उनका भी क्या ऑर्गेनिकली अचानक से हो गया था. If you ask any actor one question, who would you ask and why? एक्टर? Don't say Gurmeet. नहीं ऐसे नहीं. एक्टर से क्या क्वेश्चन पूछूं, अब बताओ. Okay, so let's skip it. If you could swap your life with one creator, who would it be? नो, मैं तो रोज ही सोचती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. मेरे साथ जो भी हुआ है, आई थिंक आई वुड जस्ट लव इट द वे इट हैज हैपेंड. मैं इसको भी बदलना नहीं चाहूंगी. Okay. Any funny rumor you have heard about yourself? Oh, that I'm pregnant again. I read that too. I read that too. If you can get a superpower, what power you want and how would you use that? अरे पतले होना. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में मतलब एक परफेक्ट फिगर होने से एक बहुत क्रेडिबिलिटी माना जाता है. वाह, इसकी फिगर बहुत अच्छी है. तो एक अगर कोई ऐसी कुछ मिल जाता जिससे जुक करके हो जाता. एंड आई फील एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी के पीछे की जर्नी डिफरेंट है. तो हाँ, ये सुपर पावर ही होगा. तो सब लोग मतलब बॉडी शेमिंग बोल के कुछ होगा ही नहीं. But what's your take on this? कि everybody feel if your figure is good means. अरे हाँ, मतलब इन आवर कंट्री तो फॉर श्योर, मतलब फिगर अच्छी होनी चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए. तो मतलब इवन दो वी आर, आवर कंट्री इज रियली टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म कंट्री, मतलब the male society is making the whole thing of putting the female first and talking about accept your own skin. It's all happening. तभी तो ये revolution चल रहा है to change that mindset. Take a courage to accept that changes are happening, because otherwise I have seen
people defining feminism and putting down nothing is happening in India. I have seen that, but it takes और a बचपन lot से of ही इतना courage. इनकलकेट किया हम्म। जाता है. I mean, as a society, everybody kind of, you know, Male dominated हाँ, society. आपको channelize किया जाता है that हम्म। oh you are not fair, oh your हम्म। features are not sharp, oh you are not like that perfect figure. तो आपको Petite, हाँ that, हमेशा एक कैटेगराइज किया जाता है. So you know, after growing up, when I learned that a voice matters, my voice matters, so I think now I can tell it clearly. You know, ये तो और being from I'm born in a mega city and I've always lived in mega cities. फिर भी मैंने इतना feel किया है. तो people who are in, you know, smaller towns and villages, I'm sure it still exists. You know, you mentioned that you're a foodie. Any weird dish you have tasted? Weird dish. नहीं, weird तो नहीं, but you know, whenever I travel to any place, any country, maybe, मैं उस जगह का local cuisine जरूर try करती हूँ. Sometimes it has happened कि I could not even read the menu, तो मैं लोगों के ऐसे plate देख के वो खाना है ऐसे करके खाया भी, और क्या खाया वो नहीं पता, लेकिन खाया है. Okay. One skincare tip you would like to give? That keep your मतलब wash your face before you sleep. मतलब कुछ भी हो जाए, even if you are tired, even if you are, you know, fainting, at least मुंह धो के सोइए, because it's a blunder to sleep with makeup. One myth you would like to break about beauty? I said beauty is not about, you know, Color what now. society is teaching you about your color, about your body, about your features. It's how you feel about yourself. I mean, मैं मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ, you know, when I see my daughter who looks almost like me, मैं उसको देख के feel करती हूँ she's so pretty. But when I was a little girl, I used to look like her. मतलब I feel that both our pictures look similar. लेकिन you know, the society used to tell that you know, you are not good enough. बड़ी होके I started believing in me, and that belief has given me all the confidence. And so believe in yourself, and your confidence will make you prettier than everything, or beyond color tone, beyond features, beyond body types. One myth you would like to break about social media? That there's something called, like, you know, trend. Do something original and people will follow your trend.